آج کی اس جدید معاشی دنیا میں کاروبار کو نت نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 200 سالوں کا جائزہ لیں تو ان گزرے پچھلے 200 سالوں کے دوران دنیا میں پروڈکشن کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو بھی چیزیں اب پروڈیوس کی جاتی ہیں ان کی کوانٹٹی کا لیول بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اکنامکس سے مختلف معاملات کو سمجھتے ہوئے ہم اس بات کو اب جان چکے ہیں کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی اتنا ہی کاسٹ کم پڑے گی پروڈیوسر کو اور پیدا کار کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن پروڈکشن کو اگر بہت زیادہ بڑھا دیا جائے تو اس سے بھی مختلف معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بازار میں طلب اور رسد، ڈیمانڈ اور سپلائی کے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پروڈکشن کا اثر سپلائی پر پڑے گا، جب سپلائی بڑھے گی تو اس کا اثر پرائس پر پڑے گا، پرائس یعنی قیمت گر جائے گی جس کا نقصان پیدا کار کو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف پیداوار کا بڑھانا ہی کافی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بازار میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے معاملات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہ بات مسلمہ طور پہ تسلیم کی جا چکی ہے کہ پیداوار کا بڑھانا ضروری ہے تاکہ کاسٹ کو کنٹرول کیا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو ایکسٹرا پیداوار ہو رہی ہے اس کو پھر ہمیں ہولڈ کرنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا۔ روکنے کے لیے جگہ درکار ہوگی، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ایک مخصوص مدت کے لیے تمام پیداوار کو رکھا جا سکے، نہ صرف رکھا جا سکے بلکہ ان کی حفاظت بھی کی جا سکے اور ان کو بالکل صحیح بھی رکھا جا سکے، یعنی کہ ان کی کوالٹی کے معیار کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ یہ سیکیورٹی کے معاملات اور کوالٹی کے معاملات کو جب حل کرنے کی کوشش کی جائے گی کسی ایک جگہ کے اوپر، تو اس جگہ کو پھر گودام کہا جائے گا، جس کو ہم ویئر ہاؤس یا اسٹوریج فیسلٹی کہتے ہیں۔ ویئر ہاؤس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایکسٹرا سامان کو رکھا جاتا ہے، ہولڈ کیا جاتا ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، اس مدت تک کے لیے کہ جب تک اس کی صحیح طلب کا وقت نہ آ جائے اور اس کا مارکیٹ میں سپلائی کرنا پرائس کو خراب کرنے کے مترادف نہ ہو۔ ویئر ہاؤسنگ ایک جدید دور کا ایک ایسا حل ہے جس کے ذریعے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کو ایفیشینٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ویئر ہاؤسنگ کا لفظ اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سامان کو مخصوص مدت کے لیے روک کر رکھنا، فائنل کنزیومر تک جانے سے پہلے تک ہولڈ کرنا۔ اسٹوریج کا مطلب ہے is holding of goods till they are used for sold، یعنی جب اس کو فائنل کنزیومر کے ہاتھ میں دیا جائے تو اس سے پہلے تک اس کو روک کر رکھنا۔ آج کے جدید دور میں ویئر ہاؤسنگ اسٹوریج کاروبار کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ It refers to holding the goods till they are demanded۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان کو ایک مخصوص مدت تک روکے رکھنا، اس وقت تک روکے رکھنا کہ جب تک اس کی ایک پراپر ڈیمانڈ نہ آ جائے، مارکیٹ میں اس کی واقعتاً طلب نہ آ جائے، اس کو سولڈ کرنے کا صحیح وقت نہ ہو اور اس کو کنزیومر تک پہنچانے کے لیے بالکل مناسب وقت ہو، اس وقت تک اس کو روک کے رکھنا۔ حالات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ویئر ہاؤسنگ مختلف شکلوں میں اب دنیا میں موجود ہے، جس میں پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پبلک ویئر ہاؤسز۔ پبلک ویئر ہاؤسز کیا ہیں؟ اٹ ریفرز ٹو دوز دیٹ آر رینٹڈ فار بزنس۔ پبلک ویئر ہاؤسز وہ ویئر ہاؤسز ہیں کہ جو کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ جو مختلف انڈسٹریل ہاؤسز اور کاروباری لوگ ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق اس جگہ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر
एक मखसूस मुद्दत तक अपने सामान को यहाँ पे रखते हैं, इस मुद्दत का उनको किराया अदा करना पड़ता है। When industrial units, manufacturer or importers receive goods in bulk quantities, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर्स हैं, जब वो एक बड़ी तादाद में सामान को मंगवाते हैं तो उनको एक बड़ी जगह दरकार होती है ताकि उसको स्टोर कर सके। दे कैन नॉट रेज देयर ओन स्टोरेज बिल्डिंग, और यकीनन वो अपनी बिल्डिंग्स तामीर नहीं करना चाहते, यकीनन वो अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस में नहीं इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि अब उन्होंने अपने पैसे को सामान को खरीदने में इस्तेमाल कर लिया है। तो वो फिर इन पब्लिक वेयर हाउसेस को रेंट पर हासिल करते हैं और अपनी चीजों को यहाँ पे रख लेते हैं। इसका एक फायदा इनको ये भी होता है कि जब ये सामान को यहाँ रखवाते हैं तो उसके बदले में इनको एक रसीद भी मिलती है, और ये रसीद वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोन्स वगैरह हासिल करने के लिए भी। इनको जो रसीद दी जाती है ये वेयर हाउस के मालिकान की तरफ से दी जाती है, या ये वेयर हाउस अगर हुकूमत के अंडर में है तो हुकूमत की तरफ से एक रसीद दी जाएगी, और ये रसीद इस काबिल होती है कि इसको बैंकों को सामने रखकर, बैंकों को दिखाकर इसके बदले में लोन बाकायदा हासिल किया जा सके। सेकंड है हमारे पास प्राइवेट वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस वो होते हैं कि जो के बड़े इदारे जिनको ज़रूरत होती है, जिनको पता होता है कि जो कि मुसलसल इस ज़रूरत में है कि उनके पास कोई जगह हो जहां पर वो अपने सामान को रख सके एक लंबी मुद्दत के लिए, तो ये बड़े कारोबारी लोग और इंडस्ट्रियल हाउसेस अपनी जगह खरीदते हैं और उसको वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जगह इनकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक होती है, तो ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। दे ओन्ड possess used by those who can afford them, यकीनन ये वो लोग करते हैं जो इस फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन ये जो प्राइवेट वेयर हाउसेस हैं ये रेंट पर नहीं दिए जाते हैं, ये प्राइवेटली यूज होते हैं, जिसका है वो ही अपनी जरूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करता है। थर्ड इज बाउंडेड वेयर हाउसेस। Those warehouses that are used under the contract with the custom authorities. कस्टम अथॉरिटी से मुराद ये वो हुकूमती इदारे हैं जो डॉकयार्ड पर या एयरपोर्ट्स के मामलात को संभाले हुए होते हैं, इनके अंडर में भी वेयर हाउसेस होते हैं। जब सामान डॉकयार्ड पर सी रूट्स के जरिए आता है या एयरपोर्ट के ऊपर एयर रूट्स के जरिए आता है, या और दूसरे चैनल्स के जरिए जब सामान पहुंचता है डेस्टिनेशन के ऊपर, शहर के ऊपर, तो कुछ अरसे के लिए इसको स्टोर करवाया जाता है। ये स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को इस्तेमाल किया जाता है जो कि कस्टम अथॉरिटीज के अंडर में चल रही होती हैं। इन वेयर हाउसेस को बाउंडेड वेयर हाउसेस कहते हैं। ये वेयर हाउसेस हमेशा पोर्ट्स के करीब होते हैं, एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट के करीब होते हैं। Custom authorities have the right to check the warehouses anytime. इन वेयरहाउसेस में, बाउंडेड वेयरहाउसेस में कस्टम अथॉरिटी को इस बात की पूरा इख्तियार हासिल होता है कि वो जब चाहें इस सामान को चेक कर सकें। गुड्स कैन ओनली बी विड्रॉन आफ्टर पेइंग ड्यूज सच एज ड्यूटी, टैक्स, डैमरेजेस। और ये सामान एक दफ़ा जब यहाँ पे चले जाता है तो फिर उसके बाद लाजमी तौर के ऊपर उसके जो भी चार्जेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए होते हैं, तो वो अदा करने के बाद ही ये सामान यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा डैमेज के भी मामलात होते हैं, यानी कि अगर किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है तो वो भी अदायगी करनी पड़ती है, और ये तमाम अदायगियों के बाद ही सामान यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। एक और किस्म है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक वेयर हाउसेस। ये वेयर हाउसेस की एक सबसे जदीद शक्ल है। ये ज़्यादा मुल्कों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेवलप कंट्रीज, खास तौर से अमेरिका वगैरह में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर सामान को इन ऑटोमेटिक वेयर हाउसेस में रखा जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पेपर वर्क सारे के सारे ऑटोमेटिकली मशीनों के ज़रिए होते हैं, जिससे बहुत सहूलत हो जाती है और टाइम की, वक्त की बचत होती है। और इसके लिए यकीनन जदीद मशीनरी और जदीद निज़ाम की
जदीद सिस्टम की, कंप्यूटराइज सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जिनके ज़रिए ये पूरा वेयर हाउस चल रहा होता है और यहाँ पर तमाम का तमाम पेपर वर्क और मुख्तलिफ मामलात मशीनों के ज़रिए हल किए जाते हैं। ये वेयर हाउसेस आज के कारोबार के लिए निहायत अहम है। इनके बगैर आज की इस जदीद दुनिया में कारोबार के मामलात को संभाल कर रखना, अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। ये वेयर हाउसेस आज के जदीद कारोबार को बहुत सारे फ़वाइद दे रहे होते हैं, जिसमें पहला है सीजनल कंजम्पशन। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सीजन टू सीजन इस्तेमाल होती हैं। Many commodities are consumed seasonally to be produced because stopping their production may result in the closure of the factory, laying off labor, continuing paying rent, taxes without production. बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनको एक मखसूस सीजन में ही इस्तेमाल होना होता है, लेकिन उस सीजन में आने से पहले उनकी तैयारी करना ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो कारोबार रुक जाएगा, लेबर को हटाना पड़ेगा और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, रेंट अदा करना पड़ जाएगा। तो इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए वेयर हाउसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन कंटिन्यू कर दी जाती है और जो भी प्रोडक्शन होती है वो इन वेयर हाउसेस में स्टोर कर दी जाती है और फिर मखसूस सीजन आने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो पैदा ही मखसूस सीजन में होती हैं। अब वो मखसूस सीजन में उनकी पैदावार होती है, लेकिन उनका इस्तेमाल चूंकि पूरे साल जारी रहता है, तो जब वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो उस वक्त उनका इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रीज में उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और फिर उनको फिर स्टोर कर दिया जाता है इन वेयर हाउसेस के अंदर, और फिर वक्त आने के ऊपर उनका फिर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन से पहले, ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी ये वेयर हाउस इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट बनती है, बनने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कुछ अरसे के लिए रखा जाता है। ये वेयर हाउसेस इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। इसी तरीके से जब ये अपने मखसूस मकाम पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले इनको रखा जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के मामलात के हल करने के लिए भी यही वेयर हाउसेस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से वेयर हाउसेस का एक बहुत बड़ा फायदा प्राइस स्टेबिलिटी है। डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, वेयर हाउसेस को इस्तेमाल किया जाता है, सामान को होल्ड किया जाता है उस वक्त तक कि जब तक प्राइस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो जाए। प्राइस रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, फिर उसकी वेयर हाउसेस से सप्लाई शुरू कर दी जाती है। इस तरह से प्राइस को स्टेबल रखा जाता है। बढ़ती हुई प्राइसेस को रोका जा सकता है। बहुत ज़्यादा गिरती हुई प्राइसेस को भी ये बेहतर करने के लिए ये वेयर हाउसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो इससे कंज्यूमर को नुकसान होता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिर रही हैं तो इससे प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। इन दोनों मामलात की स्टेबिलिटी के लिए वेयर हाउसेस को इस्तेमाल किया जाता है। वेयर हाउसेस का एक बहुत बड़ा काम चीज़ों की सेफ्टी है। चीज़ों को सेफ तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी वेयर हाउसेस का ही काम है। इनको सिक्योर करके रखना, इनको मखसूस टेम्परेचर में रखना, इनको डस्ट, रेन और मुख्तलिफ और दूसरे मामला से बचा के रखना, ये सब वेयर हाउसेस का काम होता है। वेयर हाउसेस में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जहाँ पर इनको इन तमाम मसाइल से महफूज रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनको तवील अरसे के बाद इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर के ऊपर चावल है। चावल जितना पुराना हो जाता है उतना ही उसका टेस्ट कंज्यूमर के लिए बेहतर हो जाता है, तो इसलिए इनका एजिंग फैक्टर को सामने रखते हुए उसका स्टोर किया जाना ज़रूरी है। ये स्टोरिंग फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसेस से हासिल होती है। इसी तरीके से बहुत सारे डिमांड सप्लाई के मामलात के दरमियान बैलेंस रखने का काम वेयर हाउसेस के ज़रिए ही होता है। वेयर हाउस ही वो वाहिद फैसिलिटी हो सकती है कि जिसके ज़रिए मार्केट के मामलात को बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया जा सकता है। डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर हल यकीनन वेयर हाउसेस ही हैं।